जो आपको ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के बारे में सब कुछ अवगत कराएगा, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम सब देखते हैं वो वर्ल्ड आयुर्वेद वैक का वीडियो ऑडियो प्रेजेंटेशन। In a world searching for holistic health solutions, one ancient science continues to offer answers. Ayurveda, the timeless wisdom of life, and leading the mission to take this healing science to the world is the World Ayurveda Foundation. Founded in 2011 by Vigyan Bharati, the World Ayurveda Foundation is a movement under the Swadeshi Science banner dedicated to the global propagation of Ayurveda. It serves as a platform to unify Ayurveda professionals, researchers, policymakers and industry leaders, ensuring Ayurveda remains a living, evolving system of knowledge accessible to all. Some of World Ayurveda Foundation's pioneering initiatives include the World Ayurveda Congress and Arogya Expo, which is the largest platform for global convergence of Ayurvedic fraternity. The International Ayush Conference and Exhibition, Dubai, a platform to showcase Ayush systems to an international audience. JAIN, or the Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, an official journal of World Ayurveda Foundation and Transdisciplinary University, Bangalore. Ayur Talks, an impactful knowledge-sharing webinar series. Ayush Guru, a comprehensive web portal dedicated for Ayurvedic education. Ayur World, the official bi-monthly magazine from the World Ayurveda Foundation, and the School of Ancient Wisdom, dedicated to reviving, preserving and transmitting the timeless knowledge systems of India. The World Ayurveda Congress is a platform established by the World Ayurveda Foundation to propagate Ayurveda globally in its true sense. Since its first edition in 2002 in Kochi, the World Ayurveda Congress has grown into a global force, with each edition marking a significant leap forward for Ayurveda. The subsequent congresses organized at Pune, Jaipur, Bangalore, Bhopal, Delhi, Kolkata, Ahmedabad, Panji and Dehradun, every edition has witnessed tens of thousands of participants, hundreds of sessions, and global representation from over 50 countries. The most recently concluded 10th World Ayurveda Congress and Arogya Expo held in Dehradun in December 2024 featured over 10,000 delegates, participation from 58 countries, 172 sessions, and a massive Arogya Expo with over 221 companies and 100,000 square feet of Ayurvedic innovation. Arogya Expo over the years has evolved to India's premier exhibition platform dedicated to Ayush systems and traditional health sciences. The Expo brings together a dynamic showcase of holistic healthcare systems under one roof. The Expo features renowned Ayush institutions and practitioners, authentic Ayurvedic and natural health products, live demonstrations, free health checkups and wellness consultations, and networking opportunities for researchers, startups and industry leaders. Arogya Expo is more than an exhibition. It is a movement to reconnect people with India's time-tested wellness traditions, promote integrative health and empower sustainable lifestyles for all. The International Ayush Conference and Exhibition Dubai is a global platform created to showcase the strength, science and scope of Ayush. Thank you very much for patience hearing. Actually, it is a अभी तक की हमारी यात्रा का शॉर्ट विवरण है, समय न होते हुए ज़्यादा हम नहीं दिखा पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आरोग्य मंत्री
चौधरी जी के साथ साथ आयुष सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, और पूर्व आयुष सचिव श्री पंकज पांडे जी और रविनाथ रमन जी का भी इस मंच से मैं आभार व्यक्त करता हूं, और एडिशनल सेक्रेटरी श्री जोगदंडे जी का भी मैं आभारी हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। कुछ तकनीकी कारण की वजह से हमने देख पाए, पर लेकिन इसका कोई मलाल नहीं है। आपके चिंतन में और मनन में प्रदेश में हुआ हर एक कार्य अपने आप में जो सफल है वो हमेशा ही रहता है। तो इस कष्ट के लिए मैं माफ़ी चाहते हैं हम लोग। अब आगे कार्यक्रम को लेकर चलते हैं। और साथियों, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा 10th आयुर्वेदा कांग्रेस, इसकी जो प्रोसीडिंग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका विमोचन होना है। तो मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सभी अतिथि और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से भी और सभी सम्मानित अतिथियों से कि कृपया वे इस प्रोसीडिंग का विमोचन करें। 10th आयुर्वेदा वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो पिछले साल दिसंबर माह में हमारे ही प्रदेश में हुई थी, ये सिर्फ एक अपने आप में एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा जो विश्व को बताएगा कि किस तरह से आयुर्वेदा के माध्यम से जो वैदिक सूक्ति है हमारी, मृत्यु माँ अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर जाने की जो हमारी वैदिक सूक्ति हमें बताती है, उसको चरितार्थ करती है। तो अपने आप में सिर्फ एक अपने आप में एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा विश्व को और दिखाएगा कि कैसी भारत इस भूमि से आयुर्वेद की गंगा बहती है और विश्व को मृत्यु से अमृत की ओर लेके जाने की जो निधि है उसके से। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इस तरह से 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की इस प्रोसीडिंग का विमोचन एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं दूसरे क्रम में, क्योंकि विज्ञान भारती का जो है कला और विज्ञान का जो संगम वो करवा रही है, उसका एक नवाचार विज्ञान भारती लेके आई है, विज्ञान विद्यार्थी मंथन। ये अपने आप में पैन इंडिया एक एग्जामिनेशन है सर, और इसमें हर साल विज्ञान भारती इसको कराती है, और ये 6वीं से लेकर 11वीं तक की प्रतियोगिता परीक्षा है। और इसका जो मूल उद्देश्य है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को पूर्णतः से ये सहयोग करती है कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा और इसमें विज्ञान, जो वैज्ञानिक चिंतन है भारत का, उससे हम अपने बच्चों को कैसे रूबरू कराएं, और जिसके माध्यम से वे आधुनिक विज्ञान को भी समझें और उसके मध्य एक कड़ी बनाएं। तो उसी का ये विवरणिका और एक पोस्टर रिलीज करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी और डॉक्टर शिव कुमार और सभी विशिष्ट अतिथि। आपका बहुत बहुत आभार। विज्ञान विद्यार्थी मंथन अपने आप में एक नवाचार है विज्ञान भारती का, जिससे हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय विज्ञान है उसको कैसे समावेश कर सके उनकी शिक्षा में, और हर साल ये कार्यक्रम होता है। आपका बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत आभार साथियों। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मध्य एक विशिष्ट अतिथि, जिसे कहें हमारे संरक्षक भी हैं विज्ञान भारती के, और जैसे कहते हैं कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, अपने देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। और करते हैं हम सभी यही प्रार्थना कि इस देश की युवा पीढ़ी फिर से संभल कर विवेकानंद हो जाए, फिर से संभल कर विवेकानंद हो जाए। इसी चिंतन और मनन में जो संगठन की एक प्रमुख भूमिका है विज्ञान भारती के, उसी के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रद्धेय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी को अनुरोध करूंगा कि कृपया वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी। सभी को सादर नमस्कार। वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के दिसंबर में जो 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम के अनुवर्ती प्रयास के लिए, फॉलो ऑफ एक्शन के लिए आज एक विशेष अभियान अपने इस उत्तराखंड प्रांत के लिए हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर आसीन
हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने सभी प्रकार की चुनौतियों में केवल एक राजनीतिक संदर्भ नहीं, सांस्कृतिक संदर्भ हो, स्वास्थ्य का संदर्भ हो, सामाजिक चेतना का संदर्भ हो, तो सभी संदर्भों में एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया है। ऐसे उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार का दायित्व निभाने वाले उत्तराखंड सरकार में एक प्रबोधन देना और उसको क्रियान्वयन करना, शिक्षा के जगत का ये जो दोनों प्रकार का एक उद्देश्य रहता है, उस दायित्व का निर्वहन करने वाले आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, श्रीमान खजानदास जी, श्री दीपेंद्र चौधरी जी, श्री रंजीत पुराणिक जी, प्रोफेसर अनूप ठाकुर जी, श्री अजय परिहार जी, विज्ञान भारती के हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रोफेसर के डी पुरोहित जी, डॉक्टर बी के अशोक जी, हमारे वैद्य रत्नम औषधशाला के श्री ईटी नीलाकंडम मूस जी, इस सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान प्रवीण रामदास जी, भिन्न भिन्न प्रकार की आयुर्वेद जगत की दायित्वों को निर्वहन करने वाले आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आयुर्वेद जब इस प्रकार के शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो जो भारतीय चिंतन है, भारतीय मनीषा है, भारतीय दृष्टि है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो सर्वे सन्तु निरामया है, इसमें केवल हम जो जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं यानी ह्यूमन बीइंग, तो केवल मनुष्य सृष्टि की बात नहीं रहती। सर्वे सन्तु निरामया का जो तात्पर्य है उसमें जड़ चेतन कण कण में जिस प्रकृति के उस ब्रह्मांड के नियंता का जो हम निवास मानते हैं, तो सर्वे सन्तु निरामया का जो दृष्टिकोण है, भगवान धन्वंतरी ने जो एक विचार दिया है, तो ये भारतीय संस्कृति इस आयुर्वेद के माध्यम से सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना को साकार करने के एक उद्यतम प्रयास के साथ लगी हुई है। विज्ञान भारती भी प्रारंभ से ही स्वदेशी साइंस, इस प्रकार के विज्ञान जगत में हमारे ऋषि मुनियों ने जो हजारों वर्षों की साधना के बाद जिस प्रकार का विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिस प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और केवल एक बौद्धिक क्षमता के आधार पर केवल एक विचार देना मात्र नहीं, तो उस विचार को जीवन में कैसे उतारा जाता है, अंग्रेजी में जिसको वे ऑफ लाइफ कहते हैं, तो हमारी भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन, भारतीय जीने की कला, उसमें एक एक प्राणी मात्र का जड़ चेतन के बारे में सोचने का विचार, उसकी चिंता करने का दृष्टिकोण, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने की बात, नदियों के साथ, पर्वतों के साथ, वनौषधियों के साथ, तुलसी को मां कहते हैं, हिमालय को पिता कहते हैं, तो ये जो संबंध जोड़ने की जो प्रकृति है, ये जो मानसिकता है, ये भारतीय दृष्टिकोण ने हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की साधना के बाद हमारे सामने प्रस्तुत की। विज्ञान भारती भी विज्ञान के जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस स्वदेशी साइंस की परिकल्पना के आधार पर आज की आधुनिक विज्ञान के साथ उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। केवल आज के 1000 साल पहले, 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले की बातों का प्रस्तुतिकरण करना, ये मात्र विज्ञान भारती का उद्देश्य नहीं है। उस समय के विज्ञान जगत की जो एक रेलिवेंसी है, एक उस समय की जो हमारे ऋषि मुनियों ने उस दृष्टिकोण को जो प्रस्तुत किया है, आज के मॉडर्न साइंस में, आज के इस आधुनिक जगत के विज्ञान जगत में भी वो कैसे उपयुक्त है, कैसे आज भी व्यवहारिक है,
कैसे आज भी उसके बिना हम सृष्टि की समृद्धता की परिकल्पना नहीं कर सकते। अगर उसके विपरीत जाते हैं तो बहुत प्रकार की त्रासदियां होती हैं। आज प्रकृति जगत में जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सामने चैलेंजेज आ रहे हैं, धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान भी उसी दिशा में जाने के लिए आग्रह कर रहा है। कठोपनिषद में जिसको तेन तक्तेन भुंजिथा कहा, उपभोग तो करना है लेकिन त्याग पूर्वक उपभोग करना है। हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, हमारी नीड कितनी है। कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने महसूस किया कि सहारनपुर से हिमालय की चोटियां उपत्यकाएं दिखाई देती थी। वो जो बेसिक नीड है उसके पास तक केवल अगर हमारी सीमाएं रहेंगी तो निश्चित बात है कि हम प्रकृति के तादाद में मिला करके प्रकृति के साथ शायद ज्यादा लंबे समय चल सकेंगे। विज्ञान भारती भी उसी दृष्टिकोण को लेकर के विज्ञान के जगत के माध्यम से सभी प्रकार के विकास की परिकल्पनाओं को साकार करना, ये जो हमारा उद्देश्य है, उसी के साथ भारतीय संस्कृति को बीज रूप में स्थापित रखते हुए उस पर विकास करना है। अर्थात दोनों का बैलेंस कैसे रखना, संतुलन कैसे करना। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर चलने वाला संतुलन और आधुनिक विज्ञान के जगत पे होने वाला विकास, इस दोनों के आधार पर ये सृष्टि एक लंबे समय तक उस विचार के साथ चल सकेगी जिसकी कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी और विज्ञान भारती इस आधुनिक जगत के अंदर जिसका प्रतिनिधित्व करती है। वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन स्वास्थ्य के केवल हमारा शरीर ठीक रहे केवल इतनी बात नहीं करता। तो आयुर्वेद की जब हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें जिस सप्तमंडलीय व्याख्या की बात आती है, शरीर है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, स्मृति है, श्रुति है और आत्मा है, उस अंतःसोपान के सातों पद इस आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान धन्वंतरी ने और बाद में महर्षि पतंजलि ने जिस अष्टांग योग की परिकल्पना करके हमारे सामने यम नियम से लेकर के और ध्यान धारणा समाधि तक की परिकल्पना हमारे सामने केवल कल्पना जगत में नहीं तो व्यवहारिक जगत में हमारे सामने प्रस्तुत किया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसी परिकल्पना, उस योग के उस समृद्धता को विश्व के सामने लेकर के गए। तो आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये सातों सोपान ये समाहित रहते हैं। वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन उसी सिद्धता को लेकर के इस विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। अभी आपने इसमें एक झलक देखी, उत्तराखंड में जो हरियाली शरण नाम का जो गांव है वहां से एक प्रयोग प्रारंभ किया है। उसके कुछ छायाचित्र अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से अनुभव किए होंगे। वहां से जो अभी दिसंबर में हमारा कार्यक्रम हुआ उसके अनुवर्ती प्रयास की एक झलक देखने को मिली। हरियाली सैन गांव के अंदर केवल एक प्रयोग है वो, परंतु पूरे उत्तराखंड में हमारे पास में जो विविध उपलब्धियां हैं, वो वनस्पति जगत की उपलब्धि होगी, वो प्रकृति जगत की उपलब्धि होगी, उन सभी उपलब्धियों के साथ वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन मिल करके विज्ञान भारती जिस परिकल्पना को लेकर के समग्र सृष्टि के अंदर काम कर रहा है, तो आयुर्वेद के जगत में विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन इस प्रकार की दृष्टि का एक केवल प्रारंभ करने का मात्र नहीं तो उस उत्कृष्ट स्थान पर लेकर के जाना कि जिसके आधार पर आगामी जिस भविष्य की हम विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, भारत माता जिस जगतगुरु वंदनीय स्थान पर, यानी विश्व के अंदर जिस भारतीय विचार की एक्सेप्टेंस की बात आती है, जब कोई कैसी जाता है तो भारत का विचार ही सामने आता है। कोरोना के कालखंड में हाथ मिलाना या प्रणाम करना, ये दोनों प्रकार की मुद्राओं के बीच में बड़ी चर्चा हुई। हम सब लोग उसके अनुभवी हैं। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जिस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिस जहां आलिंगन और या शेक हैंड जिसके अंदर है, वो भी प्रणाम की मुद्रा में आगे जो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस ये किस प्रकार की दृष्टि को अनुभव करवाता है। मैं भी एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, बहुत अच्छा उस पर शोध किया है कि जब हम स्पर्श करते हैं किसी को तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, हमारा जो हेमस्फीयर है, हमारी जो स्मृति मंजूषा जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं, वो स्मृति मंजूषा उस स्पर्श को ध्यान में रखती है। जैसे हमारी रसना, हमारी जीभ
किसी भोज्य पदार्थ को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसके टेस्ट को याद रखती है। 5 साल बाद 10 साल बाद भी अगर उस वस्तु का दोबारा भक्षण करेंगे तो हमको उसका टेस्ट याद आता है। वैसे ही वो स्पर्श की अनुभूति भी हमारी अनकॉन्शियस माइंड में वो अनुभव में रहती है। इस नाते से स्पर्श के अंदर बाध्यताएं क्या रहनी चाहिए, क्या नहीं रहनी चाहिए, वो दोनों का दृष्टिकोण उस धारणा, यानी जो अष्टांग योग की जो धारणा है, उस धारणा के अंदर समाहित किया गया है। आयुर्वेद जगत इन सभी प्रकार के विषयों को लेकर के कार्य कर रहा है। उत्तराखंड में एक अनुकूलता का वातावरण सरकार के नेतृत्व के कारण से, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनके कुशल नेतृत्व के कारण से इस आयुर्वेद के जगत के अंदर जो एक अनुकूलता का वातावरण तैयार हुआ है, उसके आधार पर विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन आगामी भविष्य में यहाँ के जो वनस्पति जगत है, यहाँ जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, परंपरागत जो आयुर्वेद का ज्ञान है, उस सभी प्रकार की चीजों को समाजव्यापी करना और उसके आधार पर कुछ रोजगार के सृजन के अवसर उपलब्ध करवाना, इस दोनों प्रकार के उद्देश्य को लेकर के काम कर रहा है। आज के इस अवसर पर हम सब लोग उस प्रकृति प्रदत्त अवसर और हमारे इस विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से, विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन के माध्यम से किया जाने वाला प्रयास, इस दोनों प्रकार के प्रयासों के साथ मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि उसके साथ में जुड़ेंगे तो आगामी आने वाले 2-4 वर्षों के अंदर ही हम इसकी एक स्वास्थ्य की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, प्राण शक्ति की दृष्टि से और एक आर्थिक सृजन की दृष्टि से भी एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। भगवान धन्वंतरी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो हम सब लोगों को उस प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाएं कि जिससे हम इस समाजव्यापी सभी प्रकार की कष्ट के निवारण करने में एक उपकरण बन सकें। इस प्रकार का आह्वान करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अब कार्यक्रम के इस पड़ाव में एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, अनटिल लायन लर्न हाउ टू राइट द स्टोरी ऑलवेज बाय ग्लोरीफाइड बाय द हंटर। तो ऐसा ही नहीं है, हमारे कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो अपनी स्टोरी लिखते हैं, नरेट करते हैं, और जिन लोगों ने वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस को सफल आयोजन में बड़ी भूमिका निभाई वो हमारे समक्ष हैं। और आज सभी का सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसके तहत मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया उन्हें सम्मानित करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रंजीत पुराणिक जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री धूत पापेसर लिमिटेड। It's a felicitation ceremony of institutional patrons and the prime sponsors of 10th World Ayurveda Congress. एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी का इनका अभिनंदन करें। आपका एक काफी लंबे समय से विज्ञान भारती, वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन में बड़ा योगदान रहता है और आज गौरव का क्षण कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। श्री रंजीत पुराणिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री धूत पापेसर लिमिटेड। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा डॉक्टर ईटी नीलकंदन मूस जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर विद्यारत्न औषधालय। आपको भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि कृपया उन्हें सम्मानित करें। डॉक्टर ईटी नीलकंदन मूस, मैनेजिंग डायरेक्टर विद्यारत्न औषधालय। आप सभी से आग्रह है कि कृपया करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा श्री अजय परिहार जी का, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग डाबर इंडिया लिमिटेड, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया उन्हें भी सम्मानित करें। श्री अजय परिहार जी, डाबर इंडिया लिमिटेड से श्री अजय परिहार जी कृपया आगे आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि कृपया स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका भी सम्मान और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं इसी क्रम में डॉक्टर बीके अशोक, हिमालयन वेलनेस कंपनी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया आगे आएं और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे भी उन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वास्तव में ये वो लोग हैं
जो इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स एंड द प्राइम स्पॉन्सर्स हैं इस कार्यक्रम के। अब मैं कार्यक्रम में बिना रुकावट किए हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रद्धेय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन से हमें संबोधित करें। और मैं कहना चाहूंगा, आप तेज चलें, आप तीव्र बढ़ें, आप राजनीति में प्रखर दिनकर बने और फैले सद्गुण सुगंध आपसे, आप पुष्प आलोकिक पुष्कर बने, आप पुष्प आलोकिक पुष्कर बने। भारत माता की, भारत माता की। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो मॉड के प्रोसीडन विमोचन समारोह में मंच पर आसीन विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और जिनको मैंने तब देखा जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, एक लंबा कालखंड उनके सानिध्य में मेरा भी बीता है, आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा श्री दीपेन चौधरी जी, श्री रंजीत पुरानिक जी, प्रबंध निदेशक भूता पेपेश्वर लिमिटेड, डॉक्टर ए.टी. नीलकंठन जी, प्रोफेसर अनूप ठाकुर जी, श्री अजय परिहार जी, प्रोफेसर के.डी. पुरोहित जी, डॉक्टर बी.के. अशोक जी और इस सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रवीण रामदास जी, ईशान भारती जी, डॉक्टर गोदियाल जी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नवीन कोहली जी, महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी, डॉक्टर जयंत नोटियाल जी, हमारे कश्यप जी और सभी आए हुए, सभी हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी से लेकर अनेक हमारे महानुभाव, सुनीता जी, सभी शिक्षा जगत, आयुर्वेद, विश्व आयुर्वेद के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे विद्वानगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले विश्व सर्वप्रथम मैं विश्व आयोजित कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो के प्रोसीडिंग विमोचन समारोह में आए हुए सभी प्रतिनिधियों और सम्मानित आयुर्वेदाचार्यों का भी विशेष रूप से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन करने में सफल रहा है और आज हम उस ऐतिहासिक आयोजन की स्मृतियों और उपलब्धियों को सजोने के लिए प्रोसीडिंग का यहाँ पर विमोचन समारोह कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये समारोह केवल एकमात्र दस्तावेज नहीं है, बल्कि ज्ञान और अनुभव और गहन विचार विमर्श का सार तत्व है, जो आने वाले वर्षों में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान, शोध, नीति निर्माण, जन स्वास्थ्य की दिशा तय करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो मॉड के आयोजन के माध्यम से हम न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि आयुर्वेद द्वारा किस प्रकार उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। अभी बहुत संक्षिप्त में, लेकिन जैसे गागर में सागर भरा जाता है, वो सारा विषय आदरणीय शिव कुमार जी ने हम सबके समक्ष रखा।
साथ ही हम विश्व को अपनी सनातन हिंदू संस्कृति द्वारा बताए गए सर्वे संतु निरामया के संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाने में भी सफल रहे हैं। इसके साथ ही आज हम विज्ञान विद्यार्थी मंथन का ब्राउजर भी आज हमने जारी कर रहे हैं, जो न केवल हमारे युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, अनुसंधान, शोध की और नवाचार और प्रवृत्ति की क्षमता को विकसित करने की एक बहुत सशक्त पहल है, बल्कि भावी पीढ़ी को जिज्ञासु, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने का एक व्यापक अभियान भी है। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य, स्वास्थ्य सुनिश्चित करती रही है। आयुर्वेद मात्र गहन रोगों को ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विचारों को भी शोधित करती है, उसको ठीक करती है। आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण के कारण आज इसकी स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है और हम सब लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान इसको भली भांति महसूस किया है, भली भांति हमने जिया है। आयुर्वेद हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों रूपों से हमें स्वस्थ बनाने का काम करती है। आयुर्वेद की इसी महिमा की व्याख्या करते हुए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्वम हिताहितम मानम चम तच्च यत्रम उत्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकारी और अहितकारी, पथ्य और अपथ्य, जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान कराता है। इसी कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता को मिला हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की भूमि है। प्रज्ञा है, हमारे पर्वतीय अंचल में पाई जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियां आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में उसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय हमारे इस प्राचीन विज्ञान को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आयुष विज्ञान और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांवों तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद के एक गांव को मॉडल आयुष गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेद को जड़ी बूटियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर औषधि निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन प्रारंभ करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार से भी अनुरोध किया है।
जो उत्तराखंड में आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर विज्ञान भारती, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन और विज्ञान विद्यार्थी मंथन की मैं पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आपने ये सिद्ध कर दिया कि जब विज्ञान परंपरा और आधुनिकता का एक साथ मिलते हैं तो समाज और देश दोनों को नई दिशा मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें अवश्य सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोसीडिंग का ये संकलन जिसका आज यहाँ पर विमोचन समारोह जिसमें आप सबकी उपस्थिति है, ये संकलन आयुर्वेद की उपयुक्तता को व्यापक रूप से दुनिया के सामने रखने में सफल रहेगा। उत्तराखंड को सभी क्षेत्रों में देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।